How does that person reach 100, 200, 500? What's the route? क्या आपने देखा दुनिया में कोई ओलंपिक प्लेयर बिना किसी कोच के पहुंच गया? ना। लोअर प्रॉफिट से ज्यादा पुअर कैश फ्लो किल्स मी। आपने चाइना का नाम लिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं? इस देश में आज भी 90% से ज्यादा MSME फैक्ट्रीज बिना फैक्ट्री लाइसेंस के चलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने का शौक है, मुझे नहीं पता। मुझे 3 ऐसे प्रोडक्ट बता दो जो फ्यूचर में बहुत बढ़िया करने वाले हैं। I have worked for 42 years, but 36 years I've only tried and struggled to find what to do, how to do. SMEs एक चीज़ से बहुत डील करते हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं आती। उसका क्या सोल्यूशन है? हर कुछ समय में नया अवतार लेना पड़ता है। एक दिन कुछ हो जाता है तो कंपनी की गाड़ी भी वापस, कंपनी का घर भी खाली, सैलरी भी बंद, सब कुछ बंद, एंड सडनली यू लेफ्ट इन ओवर। इंडियंस बहुत एंटरप्राइजिंग है, हम तो मिट्टी से सोना बनाने वाले लोग। What is the most important? A great product, great technology, or great distribution? Everything is important. Business gets completed when Welcome to A Day Forward. Today's podcast is not going to be very common. Okay, why? Because I have someone who spent close to 5 decades in many businesses, and especially manufacturing. He has a very interesting life, but what caught my attention was when he said that out of 48 years of working, I spent 42 years learning and 6 years actually living life. अब ये बहुत अजीब सी चीज़ है, बट ये जो इंसान हमारे साथ है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बिकॉज ही इज़ द चेयरमैन ऑफ जयराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ IMSME. Now, IMSME is an organization that he formed himself close to 18 years back, because his mission in life is not to expand alone. He wants to impact hundreds and millions of SMEs of India. So he's also on a mission called 100 plus and a mission called 5X. So in this podcast, we are going to learn from a master of manufacturing, a master of businesses. He's going to tell us or give us a master class on what all is required by an entrepreneur to grow from, say, 5-10 crores to 100 crores, 200 crores, 500 crores, because that's his mission in life. And how India can compete in the world as a global economy, how India can compete with China especially. That's my personal, say, passion for India. So let's welcome Mr. Rajiv Chawla. Hi. Thank you, Rajiv ji. Hello, and such a pleasure to be with you, Vipin ji. In fact, I was listening to you give my introduction, sounded larger than life. And सुनने में तो अच्छा लगता है, but I don't want to believe it all because I want to remain grounded, keep learning. Before you started this shoot, we had such an amazing conversation. तो हम तो ये बात कर रहे थे कि उसी conversation को एक सीक्रेट कैमरा से आप रिकॉर्ड कर लेते तो it would have been a great podcast. Great podcast. तो पहले एक चीज़ बताइए राजीव जी, like you studied advertising and you had a small stint in advertising as well. Then what sudden change happened? आपने बोला कि I'll get into manufacturing. Well, I'll call it destiny. Okay. And I didn't want to begin superstitious, but I cannot, because your first question is this. I did very well in advertising. In fact, I was the topper of advertising and public relations in Indian Institute of Mass Communications. And so along with my friends, group of 25, so I also started my journey there. And I was in Mumbai at that time, Bombay, and I joined an advertising agency as a trainee. Started doing well, and unfortunately, I lost my father at that time. I was hardly 20, and I had to come back from Mumbai, and I'm talking about 1984. And so when I came back, my family lives, still lives in a small town at that time, much smaller a township called Faridabad. And so I was the only son, 2 younger sisters. My mother didn't want me to go back to Mumbai. And she was very firm that I have to do my own work.
because suddenly losing my father, the major breadwinner for the family, who was in job and good positions, fine. But then, my mother found and we all found that एक दिन कुछ हो जाता है तो कंपनी की गाड़ी भी वापस, कंपनी का घर भी खाली, सैलरी भी बंद, सब कुछ बंद, एंड suddenly you left with no one. So that was the time when my mother took a stand actually. कि I will not allow you to, go back and be in job. कुछ भी करोगे, जो भी करोगे, but अपना कुछ करना है. And in a small township like Faridabad, which is a city of entrepreneurs, I always call it, small enterprises, large enterprises, manufacturing enterprises. So वहाँ पर तो अपनी workshop, अपनी ऐसे ही कुछ करना पड़ता. So I quit advertising altogether. I am a reluctant manufacturer, as you may call me. एंड सो घर पे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, लड़ाई भी हुआ मम्मी से कि नहीं, मैं तो टॉपर हूँ एडवर्टाइजिंग में आईएमसी का और मुझे उसी में जाना है. बट देन आई थिंक शी वन एंड राइटफुली सो. बहुत अच्छा हुआ. और देन आई स्टार्टेड, आई वाज गाइडेड बाय अ मेंटर. And for the first time, for about 9 months, I joined a factory. I saw a lathe machine and a drill machine for the first time. मैंने तो कभी देखा ही नहीं था. Non-engineer. So that was the time when the journey started. So 1985, I was able to set up a very small workshop. I took a 10,000 rupees loan, $100 loan, you can say, from the then Syndicate Bank, which is now part of Canara Bank. And that was my working capital limit, by the way. CC limit. So I started there. And then step by step, first year my turnover was 1,10,000. Annual turnover, just imagine. Second year, But in 1984, it was a big deal. No, it was not. I mean, it couldn't be. I mean, it could be like what? Today's annual turnover 10, 15 lakh or 20 lakh, 30 lakh would be nothing. So, and I still remember the second year turnover was 3.25 lakh. Annual turnover I'm talking. And then slowly it took me years because resources are limited. You can only go step by step. There are risks in life. There are other responsibilities in life. Nothing to mortgage. So it was a step by step. So I think that is why I was telling you that I have worked for 42 years, but 36 years, I've only tried and struggled to find what to do, how to do, license 36 years. Yeah, license कैसे मिलेगा, loan कैसे मिलेगा. इसको थोड़ा expand करो. Yeah. Now, this is a statement which, people, मैंने गलत बोल दिया, 48 and 6 कर दिया, but 42 years you worked, and out of that, only 6 years you're saying. 6 years of real work. Real work. 36 years to hit and trials, ढूंढने में, answer ढूंढने में. Today you have internet, you have AI, you have ChatGPT and Claude and so many AI engines. You have Google, access to internet. So you can ask anything and you get an answer. Imagine those days when there was nothing like this, no podcasts like this, no YouTube, nothing. Where do you learn from? So आपको लोन कैसे मिलना है ये कौन सिखाएगा? आपको फैक्ट्री का लाइसेंस कैसे मिलना है? आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है? आपको पोल्यूशन का CTO कैसे लेना है? कौन सिखाएगा? But 36 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया. 6 means 2020 you're saying is when. I'm saying what I mean to say कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने 42 years में काम सिर्फ 6 साल किया है. 36 साल केवल आंसर्स को खोजने में लगा है. और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आज कोई नौजवान, कोई यंगस्टर जिसको मैं को भी कोच करूं या गाइड करूं, तो मुझे लगता है वो 6 साल में वहाँ पहुँच सकता है जहाँ पहुँचने में मुझे 42 लग गई. दिस इज 6 साल. अब ये पॉडकास्ट इसी बारे में. ओके. कि जो ये देखे वो 6 साल में वहाँ कैसे पहुँचे जहाँ पे. उससे भी आगे. अब मैं कोई पीक पर थोड़ी हूँ, अभी तो जर्नी चल रही है लाइफ की. लेकिन आज का यंगस्टर वो टेक savvy है,
उसके पास ये सारे टूल्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं, नहीं थे। आज प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं, कितने कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, मैं खुद भी इंटरनेट पे देखता हूँ, बहुत लोग हैं। ये तो अब हमें डिसाइड करना है कि टीवी पे नेटफ्लिक्स भी आ रहा है, आप उस पर डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, एक बुक भी पढ़ सकते हैं। आप तब तक एआई पे या गूगल पे अपना कोई प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं। आप क्या करेंगे ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट है, टूल्स हैं, एक्सेस है, आप क्या करेंगे? आप क्या करें। तो आज इतना कुछ है लाइफ में, इंटरनेट इज एन इक्वलाइजर। Yeah. उसने ज़्यादातर, देखिए आई एग्री कि स्कूल में हो सकता है कि कोई बहुत ही ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आई कैन अगेन, प्राइमरी एजुकेशन में बहुत स्टार्क डिफरेंसेस है और वो लाइफ में बड़ा चेंज करता है। कोई फर्स्ट डे से ही कोई बहुत ही अच्छे स्कूल में गया, नर्सरी से ही, और फिर क्लास फर्स्ट 10 ईयर्स में, और कई लोग शायद 5th 6th क्लास तक एक ही टीचर पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस देयर। बट लेट अस से किसी शहर में जहाँ सब लोग पढ़ लिए और ऑलमोस्ट एक जैसे स्कूल्स में पढ़ लिए, और सभी टूल्स आज उनके पास हैं, तो उनकी लाइफ में आगे ना बढ़ने का या आगे बढ़ जाने का डिफरेंस ये है कि वो इन टूल्स से क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम किसको दे रहे हैं, वो किसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑल्सो। सो आई एग्री दैट देयर आर हैव नॉट्स, कि जिनके पास एक्सेस नहीं है इन रिसोर्सेज का, लेकिन जिन मिलियंस के पास जो फॉर्चुनेट है और ये एक्सेस है, तो मेरा ये मानना है कि वो 6 साल में कहीं ज़्यादा पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचे। नाउ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि से एन एसएमई जिसकी टर्नओवर इज अबाउट 8-10 करोड़ अ ईयर, आप ये बताइए वो कई सालों तक 8-10 करोड़ में है या फिर एक 5%, 7%, 8% जंप ले पा रहा है। नाउ how does that person reach 100, 200, 500? What's the route? Because from what we know of, ये जो 8, 10, 12 का ब्रैकेट है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है जी, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बिल्कुल। और वो इसको क्रैक नहीं कर पाते। देखिए उसका रास्ता क्या है? उसका, देखिए कोई एक रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं ब्रॉड अगर एक बात बताऊं, हर कुछ समय में नया अवतार लेना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है खुद को। अगर 2 करोड़ की फैक्ट्री है और तब आप जो काम कर रहे हैं आज 10 करोड़ होने पर भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर आप 20 या 50 पे नहीं जाएंगे। आपको अपना वर्क, एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि शुरू में रिसोर्सेज कम है, बहुत सारे काम खुद करने पड़ेंगे, लेकिन वक्त जब बढ़ता है आपको डेलीगेट करना पड़ता है, एक टीम बिल्डिंग करना। किस स्टेज पे? जहां ही आपको लगे कि आप इससे बेहतर प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और ये एक असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये असेसमेंट आपको एक कोच देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपने देखा दुनिया में कोई ओलंपिक प्लेयर बिना किसी कोच के पहुंच गया हो? ना, या इंडियन क्रिकेट टीम में कोई नहीं पहुंच जो खिलाड़ी है बिना कोच के पहुंच गया हो? पर बिजनेस में आप 99% लोगों को देखेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं 5, 10, 15, 50 साल से, लेकिन उन्होंने कोई लाइफ में कोई कोचिंग कोच नहीं नहीं ली। सो कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा। एक जिम में भी आजकल बच्चे जाते हैं, तो एक इंस्ट्रक्टर अगर रख लें तो और किसी को एंगेज कर लें तो कितनी बेहतरीन, उतना ही समय एक जिम में लग रहा है। एक इंस्ट्रक्टर किसी को स्विमिंग सिखाता है और एक अपने आप करता है, तो फर्क डेफिनेटली आएगा, एक फनेस आएगा। सो आज बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, पहले चीज ये समझिए। दूसरा, ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते और नॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, क्योंकि इंटरनेट, गूगल, टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, एक्सेस सबके पास है। अब आपके ऊपर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सीखना चाहते हैं, कैसे सीखेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, आपको लेटर से नॉर्मल अकाउंटिंग से डिजिटल अकाउंटिंग पे कब आना है, डिजिटल से ERP पे कब आना है, आपको अपने फैक्ट्री में ऑटोमेशन कब करनी है, आपको सेल्स टीम कैसे बनानी है, सेल्स को ग्लोबल लेवल पे कैसे ले जाना है, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अब एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप यहीं पर अपना सेल्स का एफर्ट करेंगे तो ग्लोबल सेल्स कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप डेलीगेट करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपका फोकस एरिया अब ये रहेगा,
और किसी और का कुछ और। तो साथ साथ टीम बिल्डिंग करना, डेलीगेशन करना, मॉनिटरिंग करना, HR प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं। देखिए, HR और सस्टेनेबिलिटी ये दो इतनी बोरिंग चीज़ें लगती हैं सुनने में कि आप किसी MBA की बुक में भी देखें तो लास्ट चैप्टर होगा HR का। अच्छा। और मुझसे अगर आज पूछें तो मैं ये कहता हूँ कि काश ये HR ज़िंदगी का पहला चैप्टर हो। मैं आज अगर अपनी टीम को पहले दिन समझ लूँ और बना लूँ। देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता भी हूँ कि भगवान न करे ऐसा हो कि पर ज़िंदगी में अगर सब कुछ खो जाए और मेरी टीम केवल मेरे साथ हो, तो अब की बार मुझे 42 इयर्स नहीं लगेंगे वहाँ पहुँचने में। अब शायद मैं वो जर्नी 1 या 2 साल में भी पूरी कर सकता हूँ। सो इन चीज़ों को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सेज को कब बेटर इस्तेमाल करना, प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट, रीचिंग आउट, कीप लर्निंग, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर कंप्लायंसेस, बहुत लोग कंप्लायंसेस नहीं करेंगे। अपनी जन्म पत्री अपने हाथ से खराब लिखते। देखिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, इस 3 बेसिस पर एक जन्म पत्री बनती है। अब जिंदगी भर वही रहेगी। आप दुनिया में किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित के पास जाएं और दिखाएं सेम ही रहेगी। तो सेम मिलेगी। और फिर वो रीडिंग में अपना अपना फर्क डालेंगे अपने इनसाइट्स के हिसाब से। लेकिन भगवान ने ना एक जन्म पत्री बनाने की पावर आपको दी है, वो है अपने बिजनेस की। और बिजनेस की जन्म पत्री क्या होती है? आपकी बैलेंस शीट। अब एक टिपिकल एक एंटरप्रेन्योर से पूछिए, वो टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट कम दिखा देगा। अब आप इमेजिन करिए, भगवान आपसे कहे कि अपने हाथ से अपनी किस्मत लिख दो और खराब लिख दो। 31 मार्च की ये बैलेंस शीट आपकी जन्म पत्री है। आप जिंदगी में कहीं जाइए, किसी बैंक में प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, वो उसी को देखेंगे। वो कहेंगे 3 साल की बैलेंस शीट ले आइए। अब आपने खुद ही अपने हाथ से खराब कर रखी। कैसे कोई बैंकर आपके फ्यूचर पे इन्वेस्ट करेगा? लोन मिले या ना मिले, मिले तो कितना मिले, किस रेट पर मिले, वो सब बॉटम लाइन डिसाइड। तीनों चीजें। इसीलिए आपको कोई मेंटरिंग मिल जाए, कोई आपको समझ में आ जाए खुद से, या आप चाहे यूट्यूब से सीखें या किसी कोच से सीखें। बट लोग तो ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं कि मेरे टैक्स बचा लो। यस, तो इसीलिए उनका भी विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 40 साल पहले जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम किया, तो उन्होंने उस समय की हमें नॉलेज और समझ दी। तो वक्त के हिसाब से यही तो फर्क है कोच में और एक गाइड में, कि आपको जिस दिन ये रियलाइज हुआ कि आपकी किस्मत बहुत हद तक तो आपके हाथ में ही है, आपने खुद ही अपने हाथ से किस्मत खराब लिखी, तो आप चाहकर भी नेक्स्ट लोन लेना चाहते हैं, बैंक कैसे लोन देगा? बैंक ये कहेगा आप EMI कैसे भरेंगे? सो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को करना है। तो एक एंटरप्रेन्योर को लगातार ट्रांसफॉर्म करते रहना है, और फंडामेंटल कुछ स्टेप्स हैं, उस पर ध्यान दें। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, कंप्लायंसेस, इन सब चीज़ों को करें तो क्यों। और यही वजह है कि एक मिठाई की दुकान हल्दीराम बन जाती है और एक वहीं की वहीं रह जाती है। एक चीज़ बताओ, जैसे बहुत सारे SMEs एक चीज़ से बहुत डील करते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स, डिलेड पेमेंट्स। उनकी पेमेंट्स नहीं आती, उसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट डू दे नीड टू क्रैक? एंड दे कीप सेइंग कि यार ये मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है, आई डोंट वांट टू लेट दिस क्लाइंट लो, मेरा 70% बिजनेस ये दे रहा है। विपिन जी, ये आपने इतनी दुखती नर्व पे हाथ रखा कि हमारे देश के MSMEs का एक हमारा ना बिजनेस का इकोसिस्टम ही खराब था, खराब है, जो अब धीरे धीरे सुधरने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़िए, सरकारी कंपनीज में अगर आपने माल बेच दिया, रेलवेज, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD का कॉन्ट्रैक्ट, कितने लोग काम करते हैं इनका, उनकी आज तक की समस्या यही थी कि काम कर दो, पेमेंट टुकड़ों में मिलेगी, कई कई बरसों में मिलेगी। लोग कोर्ट्स कचहरियों के भी चक्कर खाते हैं, बहुत चीज़। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लेने प्रारंभ किए। पहले एक MSME एक्ट आया 2006 में, उसमें इन्होंने मैंडेट किया 45 डेज में पेमेंट मिलेगी। उसके बावजूद नहीं लोगों ने मिलती। नहीं।
फिर गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए पूरे कंट्री में। अब फैसिलिटेशन सेंटर्स किसी स्टेट में बहुत अच्छा चल रहा है, किसी स्टेट में नहीं, किसी स्टेट में अचानक बहुत अच्छा था, फिर कोई ऑफिसर चेंज हो गए, फिर वापस नीचे आ गया। तो यानी सब कुछ मैन ड्रिवन, कोई सिस्टम ड्रिवन नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक अच्छा चेंज और किया, उन्होंने जीएसटी में एक नॉर्म बना दिया कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे 6 महीने में तो आपको जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो भी एक चलिए चेंज हुआ। फिर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43BH में गवर्नमेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज किया। उन्होंने बोला कि अगर आपके कोई भी सप्लायर माइक्रो या स्मॉल से हैं और अगर आपका परचेज ऑर्डर है तो परचेज ऑर्डर के हिसाब से आप पेमेंट देंगे, अदरवाइज विद इन 45 डेज देंगे, और परचेज ऑर्डर भी 45 डेज से ऊपर का नहीं हो सकता। और अगर नहीं पेमेंट देंगे तो आपको उस साल वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अच्छा, सो अगर मान लीजिए आपने कोई पेमेंट, आपका पेएबल है अगर 31 को, अगर 45 डेज से ज्यादा पेएबल है तो उस साल के एक्सपेंस में नहीं नहीं डालेंगे। अब आप वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस, जब जिस साल आप पे करेंगे उसी साल आप वो एक्सपेंस बुक करेंगे। तो ठीक है, अब किसी ने आज अगर 1 करोड़ रुपए की पेमेंट देनी है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज और वो 45 से एक्सीड हो गई है, तो वो 1 करोड़ रुपए एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, बचेगा उसका। तो नेचुरली 1 करोड़ रुपए पे उसको टैक्स देना ही पड़ेगा इस साल। और वो ये एक्सपेंस तभी बुक होगा जिस साल वो पेमेंट करेगा। तो ये एक चेंज हुआ। और अभी हाल ही में इसी अगस्त में सरकार ने बहुत ही इंटरेस्टिंग MSME एक्ट 2006 में एक अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट में और टीथ दे दिया है कि आज फैसिलिटेशन काउंसिल्स पहले मीडिएशन करेंगी, नहीं तो आर्बिट्रेशन करेंगी। ये 90 डेज से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं रहेगा, और अगर चैलेंज भी होगा कोर्ट में और वो चैलेंज अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो 50% पेमेंट फिर भी एंटरप्रेन्योर को करनी ही पड़ेगी, उसी समय करनी पड़ेगी। दैट्स राइट। और जो भी अवार्ड होगा वो भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिकवरेबल हो जाएगा। अच्छा, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लैंड अगस्त, रेवेन्यू एक्ट में रिकवरेबल हो जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी में से भी ले सकते हैं। दैट्स राइट। उसका बैंक का खाता अटैच हो सकता है, उसके एसेट्स अटैच हो जाएंगे। तो यानी एक तरह से पहली बार देश में अब एक माहौल बन रहा है जब पेमेंट्स टाइम से आने के लिए खरीदार पर तलवार लटक रही है, प्रेशर है। और गवर्नमेंट ने ट्रेड्स पोर्टल एक बनाया जो कि एक तरह से बिल डिस्काउंटिंग पोर्टल है, फैक्टरिंग का पोर्टल है, कि आपने कोई सप्लाई किया कंपनीज़ को और या सरकारी कंपनियों को, तो आपको वो पोर्टल पे जाएगी और आपको जब तक वो पेमेंट देंगे तब तक आप चाहे तो कोई बैंक से फंडिंग मिल जाएगी या फाइनेंस कंपनी से। तो अब वो ट्रेड्स भी मैंडेटरी कर दिया है। जेम पोर्टल को ट्रेड्स के साथ अब लिंक कर दिया है कि सरकारी काम अगर जेम पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं तो सरकार की वो पेमेंट्स भी ट्रेड्स पर जाएंगी, और ट्रेड्स के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर को जल्दी पेमेंट भी मिल सकती है। देखिए, एक MSME रॉ मटेरियल खरीदे, रेंट दे, तनख्वाह दे, बिजली का बिल दे, ट्रांसपोर्ट दे, पैकिंग करे, सब कुछ करने के बाद अब 45 डेज आपको उधार भी दे हैं, और फिर भी उसकी पेमेंट ना आए। और तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा अन्याय है। एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लार्ज कंपनीज की चीपेस्ट फंडिंग एजेंसी बन गई बिना इंटरेस्ट के। तो अब इस इकोसिस्टम में बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जो लोग स्ट्रक्चर्ड सप्लाई चेन्स में हैं, जैसे मैं, वी आर इन द सप्लाई चेन ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर्स, तो आज OEMs Tier 1 को समय से पेमेंट दे रही हैं, और सब Tier 1 हमें विद इन 45 डेज पेमेंट्स आ रही हैं आज हमें। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज हमें तो कहीं पेमेंट के लिए जाना ही नहीं पड़ता। इस वजह से लेट अस से मेरे यहाँ भी जो छोटे सप्लायर्स हैं माइक्रो स्मॉल के, हम उनके पेमेंट भी टाइम से दे रहे हैं। तो ये साइकिल बहुत हद तक बेहतरीन काम कर रही है। बट कई लोग, एटलीस्ट इंडिया में मैंने नोटिस किया है, पेमेंट डिले को, इन द सेंस क्रेडिट देने को 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन को एज अ सेलिंग टूल यूज करते हैं। हाउ इंटेलिजेंट इज अलाउड ही नहीं है। देखिए, ये इलीगल हो गया। अगर आप लॉ कर तो रहे हैं सर, देखिए 2 प्रैक्टिस है। सरकार ने तो दहेज के विरुद्ध भी कानून बनाया है, करेक्ट, आज भी कई जगह दहेज दिया जा रहा होगा, बट एटलीस्ट एक रिड्रेसल का मौका तो है कि आज ग्रीवेंस तो कर सकते हैं, करेक्ट, एक रॉन्ग डिमांड की। उसी तरह
यहाँ 3 चीजें मैंने बताया। और इस जीएसटी, पे ग्रीवेंस कौन करेगा? देखिए मैं जाता हूँ। जीएसटी ये नहीं देखेगा कि आपने अपनी मर्जी से नहीं, 200 मैं कह रहा हूँ मैं दे रहा हूँ और मैं जीएसटी भी नॉट अलाउड। वो जीएसटी अगर ये 180 दिन में पेमेंट नहीं की तो जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आप जब पेमेंट देंगे तब जीएसटी ले लेना। वन, उसी तरह इनकम टैक्स कह रहा है ठीक है आप 45 डेज के बाद पेमेंट देना चाहते हैं, दे दीजिए। जिस साल में आप पेमेंट देंगे उस साल में एक्सपेंस बुक करना। एक तरीके से परचेज उस दिन मानी जाएगी जिस दिन आपने पेमेंट दी। तो अगर बायर को एक्सपेंस बुक करना है तो ही बेटर पेज यू टुडे। अदरवाइज डेफर किया तो उसको आज इनकम टैक्स एडवांस देना पड़ेगा एक तरह से। सो ये इकोसिस्टम है। और लास्टली सबसे बड़ी चीज कि चलिए मर्जी से आपने मेरी पेमेंट लेट दी, मैं चुप हूं, लेकिन किसी दिन डिस्प्यूट हुआ, आई कैन गो टू द कोर्ट, आई कैन गो टू द फैसिलिटेशन काउंसिल एंड डिमांड। और जो पेनल्टी है ना, इट इज 3 times द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाह, कंपाउंडेड मंथली। अच्छा, यस सर। तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने देने थे 10 लाख रुपया और मान लीजिए फैसला 3 साल बाद हुआ या जो भी हुआ, पता नहीं कितना तो आपको तब तक 10 लाख के 30 लाख देने पड़ रहे हैं कि 10 लाख प्रिंसिपल और 20 लाख का इंटरेस्ट। तो ये आज बायर्स के फेवर में है कि वो बेटर ये है कि पेमेंट टाइम से दे दें, इवन इफ सप्लायर इज विलिंग टू गिव यू एडिशनल थिंग, क्योंकि कहीं आपको जीएसटी का लॉस होगा, नहीं तो इनकम टैक्स का लॉस होगा। और एक और, कंपनीज एक्ट में भी आज जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं उनके ऑडिटर्स को डिक्लेयर करना पड़ता है कि इन्होंने एक साल में कितनी पेमेंट Purchase. समय से नहीं की। सो विच इज अ मेजर थिंग एंड दे आर फोर्स्ड टू पे द डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट। तो अब वक्त बदल रहा है, अब माहौल बदल रहा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी जागरूकता और बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे इसका एक माहौल बनेगा। तो देश में आज टाइमली पेमेंट का सिस्टम बेटर हो रहा है, और ये बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। 100% तो कभी भी नहीं होता हाँ, मगर फिर भी बहुत कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, लेकिन बहुत हद तक एमएसएमई सेक्टर का बदलाव निश्चित है। एक प्रॉब्लम से बहुत एंटरप्रेन्योर्स डील करते हैं। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की टर्नओवर है, बट उनके कैश फ्लोज मेस्ड अप है। व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर मिस्टेक दे मेक? मेजर मिस्टेक ये है कि हम ना टर्नओवर को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए काम मिलना नेचुरली एक बहुत बड़ी चीज, वो फर्स्ट चीज होती है। फिर जैसे ही काम मिला तो बिना ये देखे कि पेमेंट कब तक आएगी, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना है। तो एक डेस्परेशन हो जाती है कुछ करने की, और बहुत से लोग बहुत जल्दी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ही कस्टमर को 70% सेल है, 80% सेल। आप ये देखिए, अगर एक कस्टमर आपसे 70-80% आपका बायर है तो वो तो प्रैक्टिकली कंट्रोल कर रहा है आपको। वो किसी भी दिन अपनी पेमेंट टर्म्स चेंज कर सकता है, आपके रेट्स कम करने के लिए आपको फोर्स कर सकता है, प्रेशर कर सकता है। एक तरह से वो आपका इक्विटी होल्डर हो गया विदाउट पेइंग यू। They become the deciding factors. They become almost like directors and managing directors of your company. So entrepreneurs should always be cautious कि they should try to diversify always. ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हों ताकि किसी एक कस्टमर का मेजर चेंज हो, कोई बैंकरप्ट हो जाए या कोई और पॉलिसी डिसीजन में चेंज हो तो इम्पैक्ट कम आए। ये फंडामेंटल चीज़ है। सेकेंडली, टर्नओवर कर लिया, अब पेमेंट टर्म लेट है, कैश फ्लो है नहीं, अब आप कुछ और भी नहीं कर सकते। और आजकल आपको भी 45 डेज में अपने पेमेंट देनी है, कितनी भी छोटी कंपनी है आपको करना है, उसको अपने सप्लायर्स को भी देना है। सो ये देखने के लिए फिर मार्केट में कॉम्पिटिटिव है, तब तक आपको कोई नया कस्टमर ने काम दिया, अब आपके पास काम करने के लिए पैसे ही नहीं। सो इसीलिए कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। लोअर प्रॉफिट से ज्यादा पुअर कैश फ्लो अच्छा, kills people. So businesses के चलने के लिए कैश फ्लो तो फंडामेंटल, कैश फ्लो तो ब्लड लाइन है। खून का दौरा रुक जाएगा तो आप देखिए क्या होगा। तो इसीलिए कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर पे ज़्यादा ना देखें। इम्पॉर्टेंट है ग्रो करना ज़िंदगी में, लेकिन ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट।
आपकी ROI क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारी फैक्ट्री बुक कर रखी है, प्रॉफिट टोटल मार्जिन 2-2.5% है। आज कोई अच्छा बिजनेस भी आपके पास आया, कैपेसिटी नहीं है करनी, या नए रॉ मटेरियल्स की या नई और चीज़ की। सो ऑलवेज कीप सम स्पेयर कैपेसिटी फॉर न्यू कस्टमर्स, फोकस ऑन न्यू कस्टमर्स। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को इनिशियल फेज के बाद रनिंग बिजनेस को डेलीगेट करना होगा, और So that they can focus on this. so that they can focus on value addition, innovation, new markets, new products, new services, new ways of productivity, automation. तो ये तो never ending journey. And if I were to ask you for a manufacturer, especially, what is the most important? A great product, great technology, or great distribution? Everything. A great product poorly distributed will give you poor business. Great product, great distribution, but bad quality because of, let us say, poor technology use or something, again will not take you anywhere. So it's a combo. One you will need both legs and a strong spine and a strong heart. Only then you'll win the race. So it is not just any one element that is important. Everything is important. Selection of right product, right pricing, right productivity, right technology, right packaging, right distribution, right payment collection. A business gets completed when the entire cycle completes itself. Do you think it has changed over the years? Like initially, there was a time that India had average products but great distribution, and the business used to do well. Do you think it has changed now? When was that? देखिए, अगर आप जब भारत सोने की चिड़िया होता था उस नहीं, जमाने की उस जमाने की बात नहीं कर रहा, जी। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते देखिए थे। उस समय कंपटीशन शायद कम था, हाँ, तो लेकिन मार्केट्स भी बहुत छोटी थी। लेट अस आल्सो एडमिट कि मार्केट्स कितनी थी, कितने लोग एयरलाइंस में फ्लाई कर सकते थे, बहुत कम। कितने लोग होटल्स में जा सकते थे, कितने लोग टीवी खरीद सकते थे। तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चीज़ों को प्राइसिंग ठीक करती है। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, कि आपका प्रोडक्ट इतना सस्ता हो गया, इतना अच्छा हो गया कि सभी खरीद सकते हैं। आज किसी भी घर में जाइए, आपको टीवी भी मिलेगा, फ्रिज भी मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। सो माई पॉइंट इज़ कि टेक्नोलॉजी इज़ एन एनेबलर, इट्स अ गेम चेंजर। तो ये इट्स अ वेरी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बट ऑफ कोर्स इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मार्केट को कैप्चर करना इम्पॉर्टेंट है, राइट प्रोडक्ट की डिलीवरी करना इम्पॉर्टेंट है, वरना लोग चाइना कब ले लेंगे। देखिए, एक बायर आज अगर टीवी लेने गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू बाई योर टीवी बिकॉज इट इज़ मेड इन इंडिया। ना, so उसको अच्छी टेक्नोलॉजी, दैट्स राइट, अच्छे प्राइस में, right at the अच्छे right पेमेंट price प्लान में and मिलेगी। right guarantee, right warranty, etc. आपने चाइना का नाम लिया, मेरा अगला क्वेश्चन यही था दैट इंडिया, अभी हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड फ्रॉम व्हाट अ लिटिल नॉलेज आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री इज़ दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर मैसिव फोकस है, एंड आफ्टर कोविड पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव जी, for manufacturing alternative for China plus one policy. China plus one policy. On the ground, because you're on the ground and you're in touch with so many other entrepreneurs as well who are in the manufacturing sector. On the ground की reality क्या है? हम कितना progress करे हैं? हम कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं? अभी गैप है। मैं अगर ब्रॉड बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो जीडीपी का टिपिकल 14-15% जिसका शेयर, तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 25% तक लेके जाए। अभी वो वहीं स्टक है। 14-15 हो सकता है श्रिंक भी हो गया हो, बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स। गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की? आंसर इज यस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक प्रोग्राम आया, 24,000 लॉज को चेंज किया गया, अमेंड किया गया या समाप्त किया गया। बहुत सारे एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया, जिसमें कल तक किसी गलती पर जेल हो सकती थी, अब उसको पेनल्टी लगा के समाप्त किया गया, पेनल्टीज को रैशनलाइज किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया।
फिर गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फेज 2 स्टार्ट किया। इस समय फेज 3 पे है अच्छा। कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स राज्यों में जा रही है, राज्यों को मॉनिटर कर रही है कि बहुत सारे लॉज राज्य बनाता है, स्टेट बनाता स्टेट है, गवर्नमेंट तो आज स्टेट्स के ऊपर भी निगरानी है, उनको भी पुश किया इन जा रहा है पैरिटी हो। कि वो भी अपने लॉज को कम करें, अपने नियमों को सरलीकरण करें। तो अब स्टेट्स भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम कर रही हैं। डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग होती है आजकल कि कौन किस राज्य में एसएमईज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे आसान है। कंपटीशन है आपस दैट्स में। राइट। तो एक एफर्ट हुआ। आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारी स्कीम्स बनी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। बैंक से लोन मिलने को गवर्नमेंट ने कुछ आसान किया। 10 करोड़ तक का लोन आज बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के किसी भी एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है अगर प्रोजेक्ट ठीक हो तो। एक और स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई जिसमें कि 100 करोड़ तक का लोन भी बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल सकता है, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। एक्सपोर्टर्स के लिए 20 करोड़, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ के लोन बिना किसी माता पिता की गारंटी भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ गिरवी भी नहीं करनी है। तो एक तरह से एनेबलर बना। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मेजर्स लगातार आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम चल रहा है। तो ये एक हुआ, लेकिन इस बीच में बहुत सारे बदलाव हुए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, कोविड आया, तो ये कुछ डिसरप्शंस आए। कुछ गवर्नमेंट को करने ज़रूरी थे फ्यूचर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, कुछ नेचुरल हुए कोविड जैसे जिसने कि पूरे वर्ल्ड को चेंज किया। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में चेंजेस हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर पिछले 4 साढ़े 4 साल से चल रही है, मिडल ईस्ट क्राइसिस आया। तो इन सबको देखते हुए भी आज अगर आप देखें तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी सस्टेनेबल है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत डोमेस्टिक growth, डिमांड की बात करो आप। डिमांड भी है, मार्केट भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने देखिए कितना ग्रो किया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने कितना ग्रो किया। आज मोबाइल फोन्स इंडिया में वी आर चाइना के बाद वी बिकम नंबर 2। तो कई चीज़ों में बहुत चेंज हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, गति शक्ति स्कीम भारत में लॉन्च हुई है, रोजगार योजना हुआ, स्टार्टअप्स कितने बने, कितने यूनिकॉर्न, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए। आज ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया ने क्रिएट इंडिया ने किए। क्रिएट किया। तो लगातार काम तो चल रहा है, लेकिन उतना ही हमारी पॉपुलेशन भी है। आज वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। डिस्पैरिटी है क्योंकि बहुत से बच्चे अभी उन स्कूल्स में जा रहे हैं जिन स्कूल्स में कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ शहरों में कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे स्कूल से स्टार्ट कर सब कुछ रहे हैं। है यहाँ। तो नेचुरली जब एक बच्चा 15 साल का होगा तो दोनों बच्चों की बेसिक एजुकेशन स्किल्स में फ़र्क होगा। मैसिव होगा। हाँ, तो अभी इनको ये गैप्स को फुलफिल करना है। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स ओन वे, बट रियलिटी ये है कि बहुत लोग रीजन वाइज फिनोमिनली ग्रो कर रहे हैं। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, they are Andhra Pradesh, they are really doing very well. Uttar Pradesh, it has massively transformed. And Madhya Pradesh, some excellent states. But then let us admit that there are states which like, you can say Jharkhand or J&K. Bihar और अभी नॉर्थ ईस्ट में है और है जहाँ पर अभी और करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि रीजन वाइज, पॉकेट वाइज देयर आर पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस जहाँ इस देश ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे पहले हमारे आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, सर्विसेज सेक्टर ने अच्छा किया, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस है। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आई, बहुत से इंसेंटिव्स लेके आई। सेमीकंडक्टर्स पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, उससे हम सोचते हैं बूस्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को। एआई पे अब हो रहा है, डेटा सेंटर पॉलिसीज़ नई बन रही हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट वक्त ये है कि अब एंटरप्रेन्योर्स को भी इस इकोसिस्टम का फ़ायदा लेना है और ग्रो करना है। तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लार्ज इकोनॉमीज, बट स्टेट्स को ग्रास रूट पे और करने की ज़रूरत है। आपने पूछा ग्रास रूट पे रियलिटी क्या है? हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए और अधिक सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि फैक्ट्री लाइसेंसेस को आसान करना होगा। इस देश में आज भी 90% से ज़्यादा एमएसएमई फैक्ट्रीज बिना फैक्ट्री लाइसेंस के चलती।
90% से ज़्यादा किस कारण? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया Compliance बहुत ज़्यादा इतनी जटिल है। उसमें लेट अस से बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल बाय सिविक अथॉरिटीज़, 1940 एक्ट 48 में कोई एक्ट बना, वो आज भी वही आज चल भी रहा वही। है, आज तक चल रहा है। सो बहुत से एंटरप्राइजेज हैं जो गाँवों में लग जाती हैं, छोटे छोटे जोन्स बन गए, इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक फैक्ट्री लाइसेंसेस की प्रक्रिया को आसान नहीं किया। कुछ स्टेट्स ने किया, जैसे दिल्ली में कहा उन्होंने कि अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो फैक्ट्री लाइसेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बेहतरीन, वन सिंपल स्टेप, रिप्लेस वन डॉक्यूमेंट विद अनदर। आई विश कि हरियाणा भी ऐसा कर ले और सभी राज्य ऐसा कर ले। सो उसी तरह पोल्यूशन का CTO लेना मैंडेटरी है सबके लिए, चाहे आप MSME हैं तो भी, लेकिन उसके लिए आपको पहले बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल चाहिए अगेन। सो एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ना फायर का NOC मिल रहा है, ना फैक्ट्री लाइसेंस मिल रहा है, ना पोल्यूशन का CTO मिल रहा है। तो ग्रास रूट पे फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसकी वजह से इन फैक्ट्रीज को लोन नहीं मिल रहा। तो हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रास रूट पे अभी जकड़ रखा है, उसको फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो ये फ्रीडम जैसे ही पॉलिसी मेकर समझ लेंगे, और चाइना में कैसे है? केवल एक डॉक्यूमेंट चेंज करना है इनको। और चाइना में कैसे है ये? अब देखिए, मैं दैट आई वुड नॉट नो, बट मैं भारत से इंडिया सेंट्रिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इंडिया सेंट्रिक सोल्यूशन MSMEs को मैन्युफैक्चरिंग में देना चाहूँ, और अगर मैं केवल एक डॉक्यूमेंट चेंज कर लूँ, फैक्ट्री लाइसेंस को मिलेगा, मतलब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को मैं रिप्लेस कर लूँ चाहे Z सर्टिफिकेट से, किसी भी चीज़ या MSME के उद्यम सर्टिफिकेट से, आप यकीन मानिए ये सारे लाइसेंसेस फैक्ट्रीज को मिल जाएंगे, फिर बैंक लोन मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, सभी कंप्लाइंट हो जाएंगे एक ही लाइसेंस से। सिर्फ एक पेपर चेंज करने से। Wow. And I think that's what I know you're not commenting on China. I've been there a few times. I understand the industry there. They made it so easy. मैं एक बार चाइना में था and I was in one of the small towns. शाम को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, मुझे लगा कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एंड उस फैक्ट्री ओनर से बात करने लगा और बात करते रहा, चला गया और थोड़ी देर में मैंने देखा फैक्ट्री ओनर बहुत खुश था। मैंने क्या हुआ? तो फिर मेरे को समझ में आया कि वहाँ पे जो छोटे छोटे टाउन्स में भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, उनको ये पता होता है कि इस महीने कितने बायर्स इस टाउन में आए हैं। वो फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, उनसे ये पूछते हैं आपको ऑर्डर मिला, आपके कितने लोग आए, कितनों से ऑर्डर मिला, कितनों से नहीं मिला, अगर नहीं मिला उसमें गैप क्या है, कोई प्राइसिंग है, कोई और चीज़ है, हम आपको देते हैं और ये ऑर्डर आपके पास आना चाहिए। नहीं, आप कह रहे ये अच्छी प्रैक्टिस है। मैं ये कहता हूँ कि हमें तो इस हद तक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, हम तो मिट्टी से सोना बनाने वाले लोग हैं। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनने तक की क्षमता रखते हैं। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर में ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि वो थोड़ा सा दे दो, बस वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा, लेकिन वो आसान कर दो, उसे रोको मत किसी कंप्लायंस अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन से, अननेसेसरी किसी चीज़ के समाधान ढूंढो। देखिए उनको किस हद तक रिलैक्स किया जा सकता है, फैक्ट्री लाइसेंस को, पोल्यूशन CTO को, फैक्ट्री के या NOC को। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसको लोन्स मिल सकेंगे, लोन मिलेंगे। अच्छा, आज अगर कोई एंटरप्राइज डिफेंस में सप्लाई करना चाहे या रेलवे में सप्लाई करना चाहे, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यानी इस देश के लाखों एंटरप्रेन्योर्स इसीलिए रजिस्टर भी नहीं कर सकते अपने आप को। तो हमने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो केवल एक आध डॉक्यूमेंट्स के चेंज करने पर ये बड़ा मैसिव चेंज हो सकता है। और आई जस्ट होप कि आपका ये पॉडकास्ट पॉलिसी मेकर्स भी सुन लें और इसको कर लें। हालांकि एट IMSME ऑफ इंडिया वी कीप रेजिंग दीज इश्यूज विद द गवर्नमेंट। हमें लगता है गवर्नमेंट सेंसिटिव है, गवर्नमेंट समझती है, लेकिन अभी इतना कोऑर्डिनेटेड नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME
दिल्ली में, और उसी तरह फिर हर स्टेट के MSME मिनिस्टर्स, MSME पॉलिसी मेकर्स एक लाइन पर एक बात समझ लें और एंटरप्रेन्योर्स की बात समझ लें। फिर एंटरप्रेन्योर्स की भी वॉइसेस अलग अलग हैं, नथिंग रॉन्ग देयर, बिकॉज ट्रेडर्स अपनी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स अपनी बात करेंगे। कोई चाहता है भारत में इंपोर्ट सस्ता हो जाए, कस्टम ड्यूटी हट जाए, कोई चाहता होगा कि कस्टम ड्यूटी बढ़ जानी चाहिए ताकि सिर्फ मेरा मटेरियल बिके। एक्सपोर्ट तो ये बैलेंसिंग, इस कंट्री को बैलेंस करना, आई एम श्योर इट्स अ टफ कॉल, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम हुआ है, पर होना बाकी है। बाकी है। आज अगर if there's a youngster who wants to start manufacturing and comes to you and says कि राजीव जी मेरे को ना मैन्युफैक्चरिंग करने का शौक है, मुझे नहीं पता, मुझे 3 ऐसे प्रोडक्ट बता दो जो फ्यूचर में बहुत बढ़िया करने वाले हैं और मैं उसमें घुस सकूं। मुझे जैसे ही पता चलेगा ना, सबसे पहले तो मैं वो प्रोजेक्ट करूँगा। तो इसीलिए इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। सबको अपना बिजनेस, बट वेयर डू यू सी लाइक फिर भी कुछ देखिए, ऐसे सबको अपना बिजनेस, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट, अपने रिसोर्सेज, साधन कितने हैं, उसके हिसाब से करना चाहिए। स्किल कितना है, उसके हिसाब से ही नेचुरली आप कोई अपना बिजनेस करेंगे। स्पोर्ट्स भी आप वैसे ही चुनते हैं, वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चुनते हैं, वो अपनी हॉबी भी चुनते हैं। सो ये तो बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप देखिए, एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, एक बंद भी होता है। उसी तरह फैक्ट्री भी, एक फैक्ट्री अच्छी चलती है, एक बंद भी होती है। अब IT कंपनीज हैं, AIs हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, बेहतरीन कर रही हैं, बंद भी हो रही। सो ये हर जगह आपको ये मिलेगा, लेकिन पहली चीज प्रॉब्लम देखिए, शॉर्टेज देखिए। आज देश में लेट अस से किस चीज़ की ज़रूरत है? मेडिसिन्स, हेल्थ केयर, फिटनेस, हाउस होल्ड अप्लायंसेज, मकान, घर। सो ऑल दीज थिंग्स, विमेन प्रोडक्ट्स, ग्रोइंग मार्केट्स, मोबिलिटी, EVs, कितना चेंज हो रहा है। सो ये रिक्वायरमेंट है जो सामने दिख रही है। एनर्जी, फिर चेंजिंग फेसेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टेबलाइजेशन भी, एनर्जी की क्वालिटी भी, फिर सोलर भी, बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं। सो दिस इज़ वन। सेकेंड इज, आपने उन बिजनेसेस की जो दूसरे बिजनेसेस को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं? तो इन फैक्ट्री इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री की ऑटोमेशन, ये बहुत ही बेहतरीन है, जो कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में। वो बिजनेसेस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, जैसे कि बिजली की मोटर, मान लीजिए पुरानी बिजली की मोटर्स लगी हुई हैं हमारी फैक्ट्रीज में, और वो बहुत बिजली खाती हैं, लेकिन अब नई न्यू एज एनर्जी मोटर्स, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स आ गई हैं, उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। सो वो बिजनेसेस जो पुराने बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सके, फास्ट कर दें। और तीसरा, वो प्रोफेशनल सर्विसेज जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस या स्टार्टअप्स को श्योर पाथ पे ले जा सके, with right guidance, with right advice, with taxation advice, fintech companies जो उनको resources दें, उनको road map दें, tools दें, AI tools हैं या productive tools हैं, ERPs हैं और mechanisms हैं। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों स्ट्रेट्स ओपन है, एवर ग्रोइंग है, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी, कि आज रिसाइकलिंग बिजनेसेस पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग रिसाइकलिंग बिजनेसेस हैं। अच्छा, यस। कैसे? आप कूड़े से सोना बनाते हैं। वो कूड़ा जो लोग फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक की, पानी की बॉटल्स, पेट बॉटल्स जो लोग फेंक देते हैं नदियों में, नालों में, सीवर लाइंस में चली जाती हैं, सड़कों के किनारे। आप किसी भी सड़क पर चलिए इंडिया में, या रेलवे लाइन पे चलिए, मिल आप जाएगा। दोनों तरफ देखिए, तो ये गोल्ड है जो पड़ा हुआ है सड़क पर। किसी को हिम्मत करके इस कचरे को इकट्ठा करना है, साफ करना है और रिसाइकल करना है। तो आप इस बिजनेस में ट्रेड कर रहे हैं? मैं बहुत लोगों को मेंटर कर रहा हूँ जो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में हैं, और यस, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ सम सस्टेनेबिलिटी बिजनेसेस। बट ये बिजनेस तो ऐसा है जो भारत के हर गली, हर शहर, हर
डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों चाहिए। आप ये बोल रहे हो कि इसमें रॉ मटेरियल को, जो मुझे समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्लोज टू नेग्लिजिबल है। यस, सिर्फ कलेक्शन की कॉस्ट है। हाँ। हिम्मत है। अब मान लीजिए आपने किसी होटल से टाइप कर लिया, अब उनके यहाँ कितनी पानी की बॉटल्स लोग फेंकते हैं, रेलवे में कितना देखिए, प्लास्टिक, ट्रेन में unlimited। कितना प्लास्टिक होता है, कुंभ के मेले में देखिए, अभी कांवड़ यात्रा में देखिए, तो कितना कुछ ये चीज़ें पाने हो, तो केवल उसको कलेक्शन करना। मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ये सुन के। And I can guarantee this is one business that gives you not 100%, not 1000%, but maybe 10,000% return. वाह, वाह। मोस्टली क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं इससे? Anything. आप उसके बाद उसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसका डस्टबिन बनाइए, उसका कुर्सी बनाइए, बेंच बनाइए, टेबल बनाइए, बिन्स बनाइए। एंड हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री राइट नाउ इन इंडिया? अभी जो लोग कर रहे हैं बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, अनबिलीवेबल। बहुत ही कम। आप ये समझिए, सिर्फ प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल करके अब वही जीरो कॉस्ट का रॉ मटेरियल आपका 50 रुपये केजी का रॉ मटेरियल बन गया। तो 0 to 50 किलो आप देखिए कितने परसेंट हो गए। फिर आपने उससे प्लास्टिक के बेंच बनाए, आपने उससे चेयर्स बनाई, आपने उससे डस्टबिन बनाए, कितना सामान है, प्लास्टिक के पार्क में लगे हुए झूले बनाए, बहुत कुछ है जिसमें प्लास्टिक तो आजकल सड़कों में यूज़ हो रहा है, रूफ टॉप पे यूज़ हो रहा है, सीलिंग के लिए वॉल पैनलिंग। दैट्स राइट। सो आप वहाँ रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल जहाँ अलाउड है, देखिए बहुत जगह पे अलाउड नहीं, जैसे फूड ग्रेड, मेडिकल ग्रेड में नॉट अलाउड, बट जहाँ पर हो सकता है बिल्कुल करना चाहिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि अद्भुत है, विच इज़ मल्टीफोल्ड एंड इट इज़ नेवर एंडिंग। अभी कई सालों तक टनों प्लास्टिक निकल टनों टन प्लास्टिक समुद्र में है, धरती पे गिरा हुआ है, पौधे खराब कर रहा है, ज़िंदगी खराब कर रहा है। केवल उसको कलेक्ट करना है और उसको रिसाइकल करना है, उससे कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ बनानी। Tell me one more thing, given how businesses function now, especially in India, everything is getting competitive, very competitive. And I agree with you, जैसे आपने बोला कि बहुत डायनेमिक है इंडिया का एंटरप्रेन्योर, तो डायनेमिक है, इनोवेटिव है, सब कुछ है, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। What is that one or two skills which are required by today's entrepreneur, which maybe was not required 20 years back, जो आज मस्ट हो गया है? ओके, वन इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। अगर मैं बिल्कुल स्किल की बात करूं कि आज पता होना चाहिए कि एआई टूल्स क्या हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे आप घंटों, कई दिनों का काम मिनटों में कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी रीच बढ़ जाती है, बहुत कुछ। सो आईटी जिसको कहते हैं, उसके जो टूल्स हैं, उस टूल्स को समझना, यूज़ करना, टेक्नोलॉजी पहली सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है चीज़ है। और इसके साथ अगर बेसिक एजुकेशन अच्छी हो ना, मैं ये कहता हूँ आज 10th क्लास तक की एजुकेशन अगर हम बच्चे को वर्ल्ड क्लास दे दें, ओल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास 10th क्लास तक, तो उसके बाद वो आईटी के टूल्स ही उसको बाकी की जर्नी ले सब कुछ ले जाएंगे। एक ज़माने में होता था कि आप एमबीए कर, आईआईटी और एमबीए करेंगे तो बिजनेस करेंगे, फिर सिर्फ आईआईटीज़ करके बिजनेस हो गया, फिर कॉलेज ड्रॉप आउट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब तो स्कूल ड्रॉप आउट्स बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आज वक्त बदल गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इन टूल्स के साथ सिर्फ लर्निंग, क्यूरियोसिटी, ये खत्म मत होने देना। डोंट हेजिटेट टू टेक गाइडेंस, ताकि आपको, जैसे 1 मिनट के लिए आप, मुझे आज यहाँ आपके पॉडकास्ट में आना था, तो मैंने गूगल मैप से आपकी लोकेशन देखी, बिना किसी से पूछे, बिना किसी गलती के हम सीधा पहुँच गए। तो किसी बिजनेस कोच को जब आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, तो दैट्स इट, फर्स्ट टाइम राइट, ताकि आपका टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीज़ें बच जाए। तो ये 2 चीज़ें अगर मिल गई तो आई थिंक द मार्केट इज़ एवर गोइंग। ऑफ कोर्स बहुत कुछ और है, आपको इनोवेशन पे लगातार फोकस करना है, यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द मार्केट। लेकिन अगेन आज इतना इंटेलिजेंस अवेलेबल है
कि आपको पता है कि वर्ल्ड में क्या कंपटीशन तैयार हो रहा है, किस मार्केट में क्या ज़रूरत है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप मिनटों में सर्च कर सकते हैं कि ये अमेरिका में किस रेट पे बिकता है और यूरोप में किस रेट पे बिकता है और इंडिया में और किस शहर में कितने का है। इट इज़ सो ईजी। या तो इसमें एक चीज़ और बताइए कि आपने बोला कि एमबीए करके पहले बिजनेस बनते थे, आईआईटी करके बनते थे, फिर स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए, फिर स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। मेरा एक ओपिनियन है, मैं उसको साइड में रखूँगा, बट एजुकेशन एज यू सी नाउ, अब जब आप बोल रहे हो 10th तक की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन करके एक इंसान कुछ भी कर सकता है, तो एजुकेशन की वैल्यू कहाँ स्टैंड करती है? हायर एजुकेशन की बात। ओके, देखिए हायर एजुकेशन तो हमेशा चलेगी। यू विल ऑलवेज नीड रिसर्च स्कॉलर्स, you will always need people who are doing research to create new medicines, research to create new technologies, research to create new machinery, new levels of automation, new material sciences. तो उसकी वैल्यू तो कभी भी कम नहीं होगी। और सब तो रिसर्च करने जा नहीं रहे ना, That's बहुत right. सारे एमबीए स्कूल्स में लोग जा रहे हैं बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आप दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि आपको हर लेवल पे सबकी ज़रूरत है। फ़र्क ये है कि अब आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं ये करने के बाद बिजनेस करूंगा। देखिए हम आज बात कर रहे हैं बिजनेस की दुनिया की। हाँ, तो बिजनेस की दुनिया आज डिपेंड करती है अपॉर्चुनिटी पे। आपको जैसे लगा कि अपॉर्चुनिटी है और आपके टैलेंट या टेक्नोलॉजी या आपके रिसोर्सेज उसके एप्ट हैं, आप राइट एडवाइस लेके तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस समय क्यों वेट कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करेंगे? बेटा पहले बीए कर लो फिर उसके बाद कुछ करना। Why? I mean, why should even a parent, tell a child कि आप बेटा पहले बीए करना फिर उसके बाद अपना कोई काम करना? See, as I see the competition growing in every business, and especially 150 करोड़ की कंट्री है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली दैट आई ना बाय डिफॉल्ट व्हेन आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड, somehow I used to, in my summer vacations, I used to go to my father's factory, and my grandfather used to write accounts. पुराने ज़माने में कैश बुक लेजर जैसे इंक पेन से लिखते थे। तो 2 महीने की छुट्टियां एक साल की, 2 महीने की छुट्टियां दूसरे साल की, मैं हर रोज़ जाता था 4 घंटे के लिए। उन्होंने मुझे कैश बुक लेजर लिखना सिखा दिया। बाय द एंड, बिफोर आई रीच्ड माई 11th, जहाँ मैं अकाउंट सीखा स्कूल में, मुझे कैश बुक लेजर लिखना, बैंक रिकन्सिलिएशन, पीएनएल और बैलेंस शीट आती थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज यूथ है उसको मेरे ख्याल से 9th ऑनवर्ड्स, बहुत फास्ट है उनके, जो दिमाग है हम आपके मेरे से बहुत तेज़ हैं, 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एटलीस्ट साल में 3-4 महीने इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। आपका इसके ऊपर क्या? देखिए आप डुअल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, बरसों से इसी की चर्चा हो रही है। देयर आर कंट्रीज लाइक जर्मनी वेयर ये फंडामेंटल है और वहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया में भी आप देखिए एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल जो है वो डॉक्टर्स का है। आज मेडिकल कॉलेज जब तक 200 बेड या एक हॉस्पिटल के साथ अटैच नहीं होगा तो उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, वो वर्किंग नहीं। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आप पढ़ रहे लाइफ की हैं, बात है। साथ साथ उस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो एक बच्चा जब 4.5 साल में एमबीबीएस करता है तो जितना समय वो क्लासरूम में लगा रहा है उतना समय वो रियल है। पर इंजीनियरिंग के साथ तो ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के साथ नहीं है, एमबीए के साथ नहीं है, किसी भी एक मेडिकल को छोड़कर किसी के साथ नहीं। बिल्कुल, और इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल ही नहीं। तो जैसे मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल के साथ ही होता है, इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री के साथ ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज अटैच्ड हो। अब आप देखिए कि एक या मल्टीपल फैक्ट्री से क्या आप प्रोड्यूस करेंगे इंजीनियर्स। सो अभी तक जो करिकुलम था 6 महीने का, टिपिकल इंटर्नशिप कर लो। बहुत बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर हमें किसी से सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा दो और कुछ नहीं, एंड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहाँ से बस साइन कर लिया, छुट्टी की तरह लिया, कैजुअली लिया। बहुत लोग, और ये बात मैं आपके पॉडकास्ट के व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, वो बच्चे
और मुझे बहुत फरमाइश आती है कि हमारा बच्चा है, उसकी इंटर्नशिप करनी है 6 महीने की, किसी बहुत बहुत बड़ी कंपनी में लगा बहुत बड़े कॉर्पोरेट में 6 महीने के लगा दो। और मैं इतना हंसता हूँ, मैं कहता हूँ उसका कि कोई पॉइंट नहीं है, कि फोटोकॉपी अगर कराएंगे। बहुत बड़ी फैक्ट्री में नाम हो जाएगा कि आपने XYZ इतनी बड़ी कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया, उन्होंने एक डिपार्टमेंट में बिठाया, चाय कॉफ़ी पी, एंजॉय किया और चले गए। हाउ आई विश कि सचमुच में वो छोटी सी एक फैक्ट्री ज्वाइन करे जैसे मैंने की थी 1984 में 9 मंथ्स के लिए, और वहाँ सीखेगा। वहाँ सब कुछ देखे और सीखे। सो बट देन पीपल वांट कि वो हमारे ना CV में आ जाएगा, रिज्यूमे में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर एयर इंडिया में, आई मीन जस्ट जो टेकिंग नेम्स। सो माय पॉइंट इज कि इंटर्नशिप शुड बी रियल, इंटर्नशिप शुड बी प्रोजेक्ट बेस्ड, इंडस्ट्री एकेडमिया रियल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। आज इंडस्ट्री को चाहिए कि, और कॉलेजेस को चाहिए कि दोनों बच्चों को रियल प्रॉब्लम दें। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बच्चे को प्रोजेक्ट देता हूँ कि ठीक है मेरे यहाँ पैकेजिंग ऐसे होती है और ये कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है, इतने लोग काम करते हैं, ये पैकेजिंग की कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्टिव, लेट्स रिड्यूस इट। 6 महीने का प्रोजेक्ट है, देखो कि यहाँ ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। 6 महीने का प्रोजेक्ट बच्चे करें, रियल प्रोजेक्ट, रियल प्रैक्टिस। इसी तरह मैं शॉप फ्लोर पे कुछ बना रहा हूँ, उसमें कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, फैक्ट्री का डेटा कलेक्शन हम इंडस्ट्री 4.0 के थ्रू कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो रियल मटेरियल के प्रोजेक्ट, रियल क्वालिटी प्रोजेक्ट, रियल कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। किसी फैक्ट्री में बच्चे 6 महीने के लिए आए, इमेजिन करिए कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे सामने इंटरव्यू के लिए कोई आया, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि कोई आए मेरे पास, वो कहे कि ओके आई स्पेशलाइज इन लीन मैन्युफैक्चरिंग, सर आप मुझे अपने पास रख लीजिए, 1 साल में मेरी तनख्वाह तो आप भूल जाइए, उससे मैं 10 गुना कंपनी को बचा दूंगा। क्या मैं इंटरव्यू में उससे सेकंड सवाल भी पूछूंगा? ना। That's it. So this is what the world wants. So these youngsters, they should really start adding value. People pay you for your value. एक इंजीनियर की तनख्वाह 10,000 है या 20,000 है मान लीजिए आज के ज़माने में, दूसरा 50,000। आप वहीं सुनते हैं कभी कभी कि सीधा 1 करोड़ के पैकेज पे कोई लगा। तो पॉइंट ये क्या है फर्क है उसमें? कि कंपनी देखती है कि आप क्या वैल्यू उसमें ला सकते हैं। सो अपनी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम सामने कुछ दे सके। यू हैव टू गेन दैट। तो इसलिए इंटर्नशिप मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भी सीरियसली करनी चाहिए। जब वो करने लगेंगे तो इंडस्ट्री भी बहुत सीरियसली करने लगेगी। अभी इंडस्ट्री भी उनको बहुत कैजुअली लेती है। बिल्कुल, की सर्टिफिकेट लेने आए। राजीव जी, जो ये इंटर्नशिप सीरियसली लेने की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कॉलेजेस को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बट डोंट यू थिंक पेरेंट्स की ये इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? बिकॉज अभी ट्रेंड ये देखा जाता है, पेरेंट्स जस्ट थिंक कि मैंने एक अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसके बाद वो देखेंगे, एंड देन दे बिहेव लाइक अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ द education institute rather than a parent. But don't you think this encouragement, maybe force, maybe coercion, maybe कुछ रिश्वत देके ये काम कराना, बच्चों को जल्दी इंटर्नशिप में डालने की आदत पेरेंट्स नहीं, ओके, देखिए, मैं आजकल देख रहा हूँ पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान तो बहुत देते हैं। हाँ। बच्चे वापस आ गए, होमवर्क किया नहीं किया, क्या मिला स्कूल में। मदर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग नाउ डेज, और वो मदर्स जो बच्चों को बहुत ध्यान दे रही है, मुझे कभी कभी लगता है कि ज़्यादा ध्यान ज़्यादा दे ध्यान रही दे है। रही है। उनका होमवर्क खुद न कर दें कहीं उनको ये आदत न पड़ जाए, या समर प्रोजेक्ट कोई मिला है तो जस्ट ये नहीं कि बाज़ार से ख़रीद लिया और कर दिया। तो जो कुछ रियल बिल्डिंग की चीज़ें हैं वो ज़रूर पेरेंट्स को करवानी चाहिए। दे शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कि बच्चे को ये न लगे कि मेरा होमवर्क तो किसी और ने करवा दिया, या अभी मेरे ट्यूटर आएंगे घर पर तो वो मेरे साथ बैठेंगे तो मैं थोड़ी देर कर लूँगा। सो आई थिंक ये एक थोड़ी सी आदत होती है, बचपन से पड़ जाती है, फिर सारी ज़िंदगी जब तक कोई सर पर न बैठे ऐसे बच्चे सेल्फ ड्रिवन नहीं हो पाते। तो ऐसा मेरा मानना है। तो मदर्स बहुत ध्यान देती हैं, फाइन, बट
थोड़ा सा मेहनत करने दें, स्ट्रगल करने दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। और अच्छे स्कूल्स वही है जो बच्चों को माहौल दे रहे हैं ग्रो करने का, जो सिर्फ रैंकिंग नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ मार्किंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे को क्लास 1 2 मतलब परसेंटेजेस पे नहीं देख रहे हैं। तो ये जो रियल पहले, इसीलिए मैंने पहले 10 साल कहा कि 10 में से एटलीस्ट फर्स्ट 8 ईयर्स में, अप टू क्लास 8 मैं ज़रूर कहूँगा मिडिल क्लास तक, तो बच्चे की सिर्फ टैलेंट बिल्डिंग, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग कैपेसिटीज़ ये डेवलप होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं जानता हूँ 10th में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो फर्स्ट टाइम पीपल रियली बिकम कंपटीशन ओरिएंटेड, कि उसमें मार्क्स ज़रूरी हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा क्लास 11th में कहाँ एडमिशन मिलेगा, फिर 12th के बाद डिसाइड होगा कि किस कॉलेज में मिलेगा, फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, सो मेनी थिंग्स। सो देयरफॉर रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंटर्नशिप है ना, ये भी रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे मैंने अभी पहले बता रहा था कि बच्चे आए, उनको सच में एक चैलेंज दीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे को बोला मैंने कि मेरे यहाँ डिजिटल ये वेबसाइट है, यू टेल मी व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन। तो let them recreate, let us say, website of the organization, their digital presence, their marketing promotion, depending upon whichever field they are. So there are improvement areas in every sector. अगर हम ये बच्चों को देने लग जाएं तो बेहतरीन काम होगा और रियल टैलेंट आएगा, दोनों को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री को भी लगेगा कि 6 महीनों में बच्चों ने बहुत कुछ नया किया। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होने लगे, बट बाय एंड लार्ज हम कहें कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वो तो डेफिनेटली अब बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसीलिए कुछ जगह बहुत एक्सेलेंस प्रोड्यूस होता है और कुछ जगह कम होता है। अब एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस अ सेफ जॉब, ठीक है, इसमें रिस्क क्या है? ओके दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अ गुड जॉब इज़ ऑल्सो अ गुड करियर, फर्स्ट। सो आई रियली डोंट वांट टू से कि एंटरप्रेन्योरशिप ही दुनिया में है कि आप बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ हैं और आप भी एक रेडी लगा लीजिए सब्जी बेचने के लिए। तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हर आदमी का एक अपना टैलेंट है, अपना रिसोर्स है, अपना इंटरेस्ट एरिया है, अपना पैशन है। कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं है, और इसीलिए अपने एरिया में एक्सेल करिए। कोई आर्मी में जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और हर डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं स्टार्ट करता है। बहुत से डॉक्टर्स बड़े इकोसिस्टम में कंसल्टेंट्स की तरह काम करते हैं। सो all due regards to all the professionals, it is very important. Let's give them that respect. To talk about entrepreneurship, I think yes, it is a call. Entrepreneurship आपको कुछ फ्रीडम देती है, freedom to decide. But the freedom to decide has a heavy cost. The cost of mortgage. आप अपने घर, अपने बीवी बच्चों का भविष्य भी गिरवी कर देते हैं क्योंकि आपने लोन लिया, डेट लिया। आपके ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज देनी है, वो एक प्रेशर है। आपने मटेरियल बना के क्वालिटी पे सप्लाई करना है, वो एक प्रेशर है। फिर कस्टमर से पेमेंट वापस आना तक वो प्रेशर है। तब तक बैंक की ईएमआई टाइम से चली जाए, जीएसटी का डेट आ जाएगा, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, टीसीएस, पूरा महीना कंप्लायंसेस चलती रहेंगी। आज 15 तारीख को ये रिटर्न भरनी है ईएसआई पीएफ की, 20 तारीख से पहले जीएसटी की करनी है, टीडीएस की करनी है 7 तक। तो हर महीने, हर समय एक चैलेंज, और हर समय देखते रहना। सो हम कहते तो हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप गिव्स यू फ्रीडम to exercise your choice. But that freedom to exercise your choice has a very heavy cost. And risk. Risk, of course, at every step. और बहुत सारे रिस्क तो हैं जो कि समझना ज़रूरी है। कुछ रिस्क को हम कवर कर सकते हैं, फायर इंश्योरेंस है मान लीजिए, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, कुछ रिस्क को कवर किए जा सकते हैं। बहुत से रिस्क तो कवर ही नहीं किए जा सकते, या उनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्क है सक्सेशन प्लानिंग का। बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रोप्राइटर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब कुछ हो गया अचानक, कोविड में ऐसा बहुत हुआ, अब उसके बाद उनका बिजनेस कौन देखेगा? उस महीने का उस प्रोप्राइटर का जीएसटी कौन भरेगा? टीडीएस कौन भरेगा? उस महीने का बिजली का बिल कौन भरेगा?
चेक पर कौन साइन करेगा, वर्कर्स की सैलरी कौन देगा, बिकॉज प्रोप्राइटर तो गया, बैंक अकाउंट बंद, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से बनेगा आएगा, तब तक तो उसका बिजनेस एनपी हो जाएगा। कितना बड़ा सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन इज अ ह्यूज रिस्क एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो बात सिर्फ LIC पॉलिसी लेने की नहीं है, बात यह है कि अगर किसी ने बिजनेस क्रिएट किया तो उसके बाद अगर कुछ हो जाता पॉलिसी बनाई नहीं बनाई तो उसके बाद उसका बिजनेस कौन चलाएगा। तो सक्सेशन एक प्रोप्राइटर, एक कोई लड़े से किसी ने 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया, जब तक उसकी नेक्स्ट जनरेशन लड़े से 20-25 साल में आएगी, तो 25 साल का ये तो रिस्क है सक्सेशन का। सो और हर बिजनेस, कोई बहुत प्रोफेशनल बिजनेस, कोई लिमिटेड कंपनीज, कोई वो नहीं बन जाती। सो ये भी एक चैलेंज है। तो बिजनेस में कई तरह के रिस्क हैं। कंप्लायंसेस का रिस्क है, गवर्नमेंट ने अचानक पॉलिसी बदल दिया, टैक्स बदल दिया, इंपोर्ट महंगा हो गया, कहीं वॉर हो गई, तेल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल्स मिलना बंद हो गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, ज़रूरत ही नहीं है। अब आपकी कैसेट की फैक्ट्री है और सडनली अब आजकल यूट्यूबर, दैट्स राइट, आज यूट्यूब है, आज डिजिटल है, तो अब हु विल बाय अ कैसेट टुडे। उसी तरह लेट अस से पेन, आपने पिछली बार पेन कब इस्तेमाल किया? मुझे तो याद भी नहीं। चेक साइन करने के लिए मैं तो चेक भी अब डिजिटल पेमेंट्स हो जाती हैं, एंड डिजिटली हर चीज़ आ रही है। 10% भी चेक नहीं साइन होता। मैं मैसेज हम टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ईमेल टाइप कर रहे हैं, फ़ोन पर कर रहे हैं। तो अब आज आप पेन की अगर फैक्ट्री लगाएं तो अब तो नेचुरली दैट इज़ अ रिस्क। तो कई चीज़ें टेस्ट के हिसाब से बदल जाती हैं। फिर स्केलेबिलिटी, बहुत अच्छी किराने की दुकान है, ग्रेट, अब सडनली ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, अब दुकान तक कोई जा ही नहीं रहा। उसी तरह बहुत अच्छा आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, बड़ा फेमस है, अब सडनली जोमेटो है और है जो आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। कितने लोग एक्चुअली अब निकल के उस रेस्टोरेंट तक जाएंगे। सो आज उस बिजनेस को भी ट्रांसफॉर्म करना है। अगर उस बिजनेस को देखो, बिजनेस में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है स्केलेबिलिटी। अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। सो अगर एक रेस्टोरेंट ऊपर जाएगा या दैट्स राइट, तो स्केलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे किराने की दुकान चलाएं, चाहे सब्जी की चलाएं, आज उनको भी चाहे ONDC पे आके अपनी ऐप के थ्रू अपना मटेरियल बेचें, या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आएँ, या जो भी काम करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ये लगातार ये रिस्क्स चेंज हो रहे हैं। तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से हुआ, कभी इनोवेशन, नोकिया जैसी कंपनीज बंद हो जाती है, नंबर 1 कंपनीज इसलिए बंद हो गई कि कुछ और आ गया। बर्बरी फ़ोन्स, ब्लैकबेरी फ़ोन्स, मैं नाम ब्लैकबेरी फ़ोन्स, देखिए दे लॉस्ट देयर मार्केट। सो आज एक लीडर यहाँ है, सडनली कोई नई लीडरशिप पोजीशन पे आ गए। सो लॉट ऑफ चेंजेस। कोविड आया तो सिनेमा हॉल्स में जाने बंद हो गए, मॉल्स में जाने लोग बंद हो गए। हेल्थ की अभी कितनी AI के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें बंद होंगी, बहुत सी नई चीज़ें स्टार्ट होगी। मैं आपको एक बड़ी टिपिकल बताता हूँ कि अभी रिसेंटली हम कोई लैंड अलॉटमेंट के लिए हम वी वर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, एंड वी आर सपोज टू फाइल अ DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो हमें वो देनी है। तो टिपिकली आप किसी को असाइन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं, वो बनाते हैं, अपना टाइम लेते हैं, रिव्यू होता है, हर चीज़ें। एंड आई जस्ट सैट विद with one of my people, used a few AI tools, gave the basic data. I fed balance sheets of my last 3 years, and told the AI क्या करना है। And I got a DPR कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो लग रहा है जैसे McKinsey या Big Four किसी से आप बना के लेके आए, ग्रैंड थॉटर ने बना दी। So it is really good. So point is कि कुछ टूल्स कितना आसान हो गए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो DPR बना रहे थे उनका क्या होगा? सो दे हैव टू आल्सो थिंक इवॉल्व कि अब और क्या वो वन स्टेप अहेड, व्हाट मोर दे कैन ऐड। तो टूल्स तो आ गए, कैलकुलेटर अब सबके पास है। आज टेबल्स को याद करना बहुत मैंडेटरी नहीं रह गया, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लेंगे। लेकिन अब उस कैलकुलेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको विजडम में अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, I think that's where the world is. Yeah.
अब मैं आपसे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा Okay. before we move forward, which is India's biggest manufacturing opportunity in the next decade. Everything. And this, I really mean it. Yeah. Automotive, aeronautical, medical, energy, sustainability, recycling, water resources, hydrogen, agriculture, food processing, education, skills, AI, everything. One thing Indian manufacturers should learn from China. Grassroots excellence. Correct. Quality in reality, not on paper. ISO certification, not just on your visiting card, but systems actually implemented. And one thing China can learn from India. Oh, this is, let me think about it. It's not rapid fire. Then you're asking me intriguing questions, so allow me to think. No what problem. China should learn from India? I don't want to say spirituality and other things. Democracy. Yeah, I got it. I love that, in fact. So, funding problem or management problem, which hurts an MSME more? Management problem. Uh-huh. Okay. One business principle you will never compromise on. Customer focus. Complete this sentence. The future of Indian manufacturing belongs to. The future of Indian manufacturing, Belongs to. SME sector. Wow, perfect. Thank you, Rajiv ji. But last question before we leave: that what advice will you give your 25-year-old self? Always think, learn new things. Age is not what should scare you. Getting mentally old should scare you. Don't sit on past achievements. Past achievements are never a guarantee for future performance. So keep changing, keep learning, keep evolving, keep your eyes and ears open. Bring scientific temperament to your world. You'll get fascinated by occult. Someone will fascinate you with astrology, with vastu, with other things. Others will fascinate with you with rites and rituals. There would be festivals. There are occasions. There are many global changes all around you. So some will pull you towards adhyatm. The others will pull you towards spirituality. Someone will say Sanskriti and Sabhyata. But remember one thing, life means that one values everything, learns from everything, but keeping a scientific temperament, one wants to add value to the world. And this is perhaps easier said than done, but I'm sure this can be the way of life. Learn from everything, apply your mind, keep a scientific temperament, and keep adding value to the society. The world respects you not for what you have, but for what you give. Perfect. Thank you so much, Rajiv ji. And we really hope and we wish you all the best in your journey, your Mission 100, your Mission 5X, and the contribution you're making to the Indian society and industry. Thank you. Thank you so much, Vipinji. You are fantastic. And what a lovely team you have. Such a natural conversation. पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई. And I really, really enjoyed it. And I learned from the way you brought this conversation up. Thank you. Thank you, everybody, for watching. And if you love the podcast, do like, subscribe, and comment. Thank you so much.